Hello everyone, welcome to the new session and this is the last session of the environment. मुझे पहले लग रहा था कि सितंबर में एग्जाम होगा, so I was taking whole years of current affairs. Now, exam not going to happen in September. That is very clear. So from this point onward, I'll going to cover the current affairs on monthly basis and subject wise. Just for example, in the upcoming days, I'll going to cover the whole July current affairs. First, I'll take the polity, then I'll take the economics, then I'll take the geography, then I'll take the environment current affairs, and I'll complete all these current affairs by subject, and then monthly by monthly. Okay. Then there is another announcement. From next Monday, I'll be starting polity foundation course on this channel. That will be absolutely free. It will cover both prelims and mains. After polity, I'll start with the environment, then general science. Then general science will be taken by one of the other faculty member who will be joining this channel soon. After that, other subject will be taken by the other members. Okay, so stay tuned with the channel and let's start with today's session. अगर स्क्रीन पे देखोगे तो you'll find three conventions are written. First is the Basel Convention, third is the second is the Rotterdam Convention, third is the Stockholm Convention. ठीक है. Now, before getting into the topic, let's understand what is the difference between convention and protocol. Conventions are the broader umbrella term for the treaty. ठीक है, उसमें कोई भी डिटेल मेंशन नहीं होती है. The just main objective is mentioned in the कन्वेंशन. ठीक है, क्या करना है, किसको प्रोटेक्ट करना है, इट इज विल बी गिवन इन द कन्वेंशन. बट द एग्जैक्ट टारगेट, द साइंटिफिक डिटेल्स, द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ दैट कन्वेंशन विल बी गिवन इन द प्रोटोकॉल. So protocol never exists without the convention. Just I'll take the example of Montreal Protocol. We all know this Montreal Protocol is for the protection of the ozone. Okay, and it's a legally binding treaty also. Now, this Montreal Protocol works under the Vienna Convention of 1985, basically. Okay, so that means protocol does not exist without the convention. Convention is a larger term. Now, look at these three words: Basel Convention, Rotterdam Convention, and Stockholm Convention. ये अलग अलग टाइम पे अडॉप्ट किए गए हैं, बट इनका इस बार जो कॉप कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज. कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का मतलब ये होता है कि जितने लोगों ने इसको साइन किया है, दे विल मीट एनुअली और बाय एनुअली वॉट एवर दी टाइम पीरियड, और दे विल डिस्कस द एजेंडास एंड द फ्यूचर प्लान्स. ठीक है, उसको हम लोग कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज. ठीक है, अगर प्रोटोकॉल के लिए मिलते हैं तो हम उसको एमओपी कहते हैं. ठीक है, उस प्रोटोकॉल के नाम पे पहला बढ़ा जाएगा, और जैसे मॉन्ट्रियल के लिए मिल रहे हैं तो मॉन्ट्रियल. ठीक है, ऐसे करके कह देंगे ऑफ पार्टीज एमओपी करके. ठीक है, प्रोटोकॉल के लिए. सो ये कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज. ठीक है, यानी कॉप 13 मतलब 13 टाइम दे आर मीटिंग फॉर स्टॉकहोम. कॉप 18 बेसिल कन्वेंशन मतलब 18 टाइम दे आर मीटिंग. नाउ लुक एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेंशन. एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा कन्वेंशन कब आया और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, डिटेल में कभी नहीं गए और वो जाएंगे भी नहीं. ठीक है, अदरवाइज विल नॉट बी अ जनरल स्टडीज पेपर. लेट लुक एट द फर्स्ट थिंग दैट इज बेसिल कन्वेंशन. ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट द बेसिल कन्वेंशन, it was came in 1989. Okay, 1989. What is the basic objective? It controls the transboundary. It controls the transboundary movement of hazardous या hazard substances. Okay, या waste. Hazardous waste. ठीक है, व्हाट यू मीन ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट. अब इसका सिंपल मतलब ये है, सपोज करो यू हैव अ कंट्री ए. ठीक है, एंड यू हैव अ कंट्री बी. नाउ कंट्री बी इज लेस डेवलपिंग, कंट्री ए इज डेवलप. अब ऐसा नहीं होगा कि कंट्री ए अपने यहाँ पे हेजेडस मटेरियल क्रिएट कर रहा है. ठीक है, उसको यूज कर रहा है, जो उसका वेस्ट है ही दैट कंट्री डिस्पोजिंग देयर वेस्ट इन कंट्री बी. सो दैट इज नॉट अलाउड. दिस इज कॉल्ड द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट. ठीक है, उसी को कंट्रोल करता है बेसिल कन्वेंशन. ठीक है, नाउ द कंफ्यूजन पार्ट इज नॉट इन द एनवायरमेंट. Sometime in UPSC, not in state services, but you should know this, Basel norms. So they sound very similar, but Basel norms are related to banking, not to environment. ठीक है, अभी हम लोग बेसल 3 नॉर्म्स में है बैंकिंग में. आप लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा होगा बेसल नॉर्म्स. ठीक है, बैंकिंग में हम लोग पढ़ते हैं. इट्स अ ग्लोबल पैरामीटर्स. ठीक है, सो
बैंकिंग से रिलेटेड है बेसल नॉर्म, बेसल कन्वेंशन रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंट, ठीक है। बेसल में क्या पूछ सकता है, कब आया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ एजेडस वेस्ट, ठीक है। नाउ सेकंड इज योर रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन केम इन 1998, ठीक है, 1998। नाउ it promote the responsibility, promote responsibility, responsibility towards what, responsibility towards international trade, international trade of certain chemical pesticides, certain chemical pesticides. And this whole Rotterdam Convention work on a one principle, and that is the core principle of the Rotterdam Convention, and that is known as prior informed consent, ठीक है। core principle, prior informed consent, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको बहुत समझते हैं। अगेन आई टेक अ कंट्री ए, ठीक है, एंड कंट्री बी। सपोज करो कंट्री बी में देर इज वन कंपनी दैट इज वर्किंग इन दी पेस्टिसाइड बिजनेस, ठीक है, एंड दिस कंपनी वांट टू इंपोर्ट सर्टन केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, एंड दे आर हेजेडस, ठीक। नाउ बिफोर एक्सपोर्टिंग टू द कंपनी, कंट्री ए हैज टू इन्फॉर्म कंट्री बी, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करना होगा कि we are going to export this pesticide in your country. Now country B is allowing, they have to give a written consent. Okay, you can do it. So we call them prior informed consent. So first country A has to uh, चलते उसको बताना होगा कंट्री बी को, ठीक है, और फिर कंट्री बी उसमें रिटर्न में उनको देगी कि ओके यू कैन एक्सपोर्ट, देन कंट्री ए कैन एक्सपोर्ट दिस कंपनी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। इट्स केम इन 1998। तो बेसिकली एग्जाम में ये पूछा गया है कब आया बेसल कन्वेंशन, ये, और इनको मैच द फॉलोइंग में करना होता है। नेक्स्ट इज द स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, एंड इट्स केम इन 2001, 2001। अब इसका बेसिक काम क्या है, इसका बेसिक काम ये था, इट वांट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, control the production, ठीक है, कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ persistent organic, persistent organic pollutant, persistent organic pollutant, persistent organic pollutant का मतलब क्या होता है, पीओपीज। देखो पीओपीज को हम लोग डर्टी डजन्स के नाम से भी जानते हैं, डर्टी डजन्स, ठीक है। अब वो पोल्यूटेंट जो बहुत लंबे समय के लिए एटमोस्फेयर में सर्वाइव करेंगे या इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू इजिली ब्रेक डाउन, ठीक है। और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाके एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। सो दे बिकम द पार्ट ऑफ बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन में, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल दी प्रोडक्शन ऑफ persistent organic pollutant जिनकी लाइफ ज्यादा रहती है, वंस दे आर क्रिएटेड दे नॉट इजिली गोइंग टू ब्रेक डाउन इन दी इन्वायरमेंट नेचुरली, ठीक है। सो स्टॉकहोम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू दैट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस हैज, अगर ये टेबल याद कर लोगे सो योर थिंग विल बी इजी फॉर द एग्जाम, ठीक है। सो फर्स्ट केम बेसल कन्वेंशन, ठीक है, सेकंड केम रॉटरडैम कन्वेंशन, एंड थर्ड केम स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। नाउ एज यू नो दिस बेसल कन्वेंशन केम इन 1989, रॉटरडैम 1998, and this 2001. This is for transboundary movement of pollutant, transboundary movement of pollutant. Rotterdam is your prior informed consent on certain
on certain chemical pesticides, and Stockholm Convention is related to your POPs. ठीक है, so this much you have to remember for the exam. इसके बाहर क्वेश्चन जाने का कोई चांस नहीं है. ठीक है, so this is important for your exam. Okay, let's get into the second topic. The second topic is Montreal Protocol. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज है, ठीक है, जो भी प्रोटोकॉल है, इट विल ऑलवेज वर्क अंडर द वन ऑफ द कन्वेंशन. नाउ विच इज द कन्वेंशन? दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्क अंडर द one convention called Vienna Convention. Okay, and this Vienna Convention came in 1985. ठीक है, what was the role of the Vienna Convention? To protect ozone layer. ठीक है, to protect the ozone layer. ठीक, फिर आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें टारगेट्स को मेंशन किया गया था, इट केम इन 1987. सो ये भी याद रखना है. वियना कन्वेंशन कब आया? 1985. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में आया. ठीक है, एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? टू रिड्यूस द प्रोडक्शन of chlorofluorocarbon. chlorofluorocarbons. ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं CFC. ठीक है, इतना याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में. इसमें 2 अमेंडमेंट भी किए गए. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं, वैसे ही प्रोटोकॉल में भी अमेंडमेंट करते हैं टारगेट्स को चेंज करने के लिए. पहला अमेंडमेंट इसी के नाम पर है, मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट. सेकेंड अमेंडमेंट है किगाली अमेंडमेंट. किगाली अमेंडमेंट 2016 में हुआ था. मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट 1997 में हुआ था. ठीक है, नाउ इनके अंदर क्या हुआ था वो हमें जाने की जरूरत है, बस इतना याद रखना है. अगर कल वर्ड आता है किगाली अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओजोन. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द ओजोन यू नीड टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो दिस इज द सन. ठीक है, अब हमें पता है कि सन के अंदर पूरा एनर्जी क्रिएशन हो रहा है, सो इट रिलीज हायर एनर्जी का वेव रिलीज करता है. तो सबसे पहले निकलती है गामा रेस. जनरल साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूछता है कि कौन सी वेव पहले निकलती है, उसकी हायर फ्रीक्वेंसी किसकी होती है. ठीक है, सो और उनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है. ठीक है, सबसे पहले निकलती है गामा रेस. गामा रेस के बाद निकलती है एक्स रेस. एक्स रेस के बाद आती है अल्ट्रा वायलेट रेस. अल्ट्रा वायलेट रेस. दिस अल्ट्रा वायलेट रेस इज फॉलोड बाय दी योर विजिबल लाइट. ठीक है, जो हम लोग को दिखती है. ठीक, विजिबल लाइट. आफ्टर दैट यू विल फाइंड इंफ्रारेड, जिसको हम लोग बोलते हैं IR. फिर माइक्रोवेव्स. ठीक है, देन रेडियो वेव्स. आखिरी में रेडियो वेव्स फॉलोड बाय दी रेडियो वेव्स. ज्योग्राफी ऑप्शनल जिसका होगा उसको पता होगा कि ओजोनोस्फीयर पढ़ने के लिए यू हैव टू नो दिस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, नाउ दिस अल्ट्रावायलेट रेस हैज 3 काइंड ऑफ रेस, A, B एंड C. ठीक है, अब ये 3 तरीके की होती हैं अल्ट्रावायलेट रेस जो होती हैं. ठीक है, अब इनको समझना होगा थोड़ा सा. ये जो A है ना, ये सबसे ज्यादा अर्थ में पहुंचता है. ठीक है, ग्रेटेस्ट अमाउंट में अल्ट्रावायलेट ए. अभी करता क्या है? ये करता है एजिंग. ठीक है, सो हमेशा याद रखना है ए क्या करता है? एजिंग करता है.
So all the problem related to your aging, it because of the this not all the problem, it is one of the factor. ठीक है. Now look at the ultraviolet rays B. B क्या करता है? B partially जो है ना absorbed by the ozone. ठीक है, absorbed by the ozone. और ये कुछ अमाउंट में अर्थ तक पहुंच जाता है. ये सबसे हार्मफुल होता है. क्यों? एक तो ये स्किन कैंसर करता है. ठीक. दूसरा कैटरेक्ट का इशू क्रिएट करता है. बट this B is very important, and this is why ultraviolet B is very important, because without this you cannot synthesize the vitamin D in your body. ठीक है. सो इसीलिए क्या है कि इसका रहना भी बहुत जरूरी है. बट इन द लार्जर अमाउंट इट विल क्रिएट सो मच प्रॉब्लम. ठीक है. सी जो है ये बेसिकली क्या है कि पूरी तरीके से अर्थ की ओजोन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है. कंप्लीटली ऑब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड. प्रॉब्लम करता है बी. इसीलिए जब लेंस कार्ड पे जाओगे तो वो दिखाएगा यू बी प्रोटेक्टिव ग्लासेस, या कोई भी सनस्क्रीन अगर आप लोग यूज करते हो तो उसमें देखना लिखा होता है यू बी प्रोटेक्टेड सनस्क्रीन. क्यों? क्योंकि ये करता है स्किन कैंसर. ठीक है, ये हार्मफुल भी होता है, बट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दी वाइटामिन सिंथेसिस. ठीक है. नाउ ओजोन इज ऑफ टू टाइप्स. पहला ओजोन होता है जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर में. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गुड ओजोन. गुड ओजोन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सारे अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक कर रहा है. ब्लॉकिंग यूवी रेडिएशन. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं गुड ओजोन. सेकेंड ओजोन मिलती है ट्रोपोस्फेयर में. इसको हम लोग बोलते हैं बैड ओजोन. हम इसको बैड ओजोन क्यों बोलते हैं? इसको हम लोग बैड ओजोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग करती है. ठीक है, इट ट्रैप दी हीट. जो रेडिएशन आउटगोइंग रेडिएशन होता है उसको ट्रैप करती है, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है बेसिकली. एंड इट्स ऑल्सो पॉल्यूटेंट विच कॉज सो मेनी लाइक अस्थमा. इट ऑल्सो क्रिएट अस्थमा. अब ये कैसे क्रिएट होता है? ठीक है, देयर इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, उसकी वजह से क्रिएशन होता है नीचे ग्राउंड लेवल पे. तो ग्राउंड लेवल ओजोन जो होती है वो एक पॉल्यूटेंट होती है. ठीक है, तो बैड ओजोन क्यों है? ग्राउंड लेवल ओजोन. When we'll read about the environment subject in depth, I'll going to explain this कि वो कैसे बनता है. ठीक है. So ground level ozone is a pollutant. ठीक है. So what is the important? Important is your stratosphere good ozone. तो इसी को बचाने के लिए हम लोग क्या लिखा रहा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? दिस इज द इंपॉर्टेंस. ठीक है. जनरल साइंस के लिए क्या याद कर सकते हो यहाँ से? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कर लो बस. ठीक है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शुड बी देयर. गामा, एक्सेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर, then your microwaves, then your radio waves. ठीक है, चलो. So when we're going to cover the atmosphere, layer of the atmosphere, I'll going to explain why radio waves are used for the communication purpose. ठीक है, चलो. Now the last topic of the this session. ठीक है, another convention, that is your Minamata convention. ठीक है, this Minamata convention is related to your mercury. यहाँ पे लिखा हुआ भी है. ठीक है, Minamata is the place in Japan. ठीक है. अभी क्या होता है? कॉप 6 हुआ है, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ 6. मतलब जब ये जितने लोगों ने मिनामाटा साइन किया है, 6 टाइम दे आर मीटिंग टू डिस्कस दी समथिंग. ठीक है. नाउ जस्ट रिमेंबर ऑल द कन्वेंशन विच वी हैव रेड टिल दिस इन दिस सेशन, ऑल आर लीगली बाइंडिंग. इट इज ऑल्सो लीगली बाइंडिंग. Legally binding. Then what do you mean by the legally binding? If you sign this any convention and the protocol, if this legally binding, so you have to achieve the targets basically. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि साइन करने के बाद बोल दो कि नहीं नहीं हम लोग नहीं करेंगे. ठीक है. सो लीगली बाइंडिंग का मतलब होता है कि द टारगेट्स आर लीगली बाइंड ऑन यू. ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप अचीव नहीं करोगे तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट मिलेगी, बट देर इज अ सर्टन मैनर कि हाँ ट्राई करना है उसको अचीव करने का. ठीक है, सो दिस टारगेट्स आर लीगली बाइंडिंग. ठीक है. नाउ दिस कन्वेंशन वाज साइंड इन 2013. ठीक है, कब आया था ये? 2013 में आया था. मिनामाटा एक जगह है जहां पर मर्क्यूरी का एक्सीडेंट, ये
मरकरी का पॉल्यूशन सबसे ज्यादा पाया गया था। ठीक है, वहाँ पे एक मिसहैपनिंग हो गया था, उसकी वजह से क्या होता है, मरकरी का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो वहां पे हम लोग ने साइन किया था मिनामाटा कन्वेंशन। ठीक है, नाउ बिफोर गेटिंग इनटू दिस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस बेसिकली टॉक अबाउट द कंट्रोल एंड द रिलीज ऑफ द मर्करी। ठीक है, इन नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब होता है क्या है बेसिकली, ये जो एटमोसफेयर में मर्करी होता है, इट विल सेटल डाउन ऑन दी वाटर बॉडीज एंड दी ऑन दी लैंड। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म में जाना जाता है और फिर वो बायो एक्लिमेटेशन होने लगता है। ठीक है, नाउ इफ यू रीड अबाउट दी मर्करी, मर्करी इज ए नेचुरली ऑकरिंग हैवी मेटल। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग हैवी मेटल। ठीक है, नेचर में कहाँ से आता है बेसिकली, मर्क्यूरी कम फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शन। द लार्जर अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी कम फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शंस। ह्यूमन मेड में माइनिंग इज द मेजर सोर्स। ठीक है, अगर ह्यूमन में आएगा तो माइनिंग इज द मेजर सोर्स। ठीक है, इवन इन द सीमेंट प्रोडक्शन। ठीक है, सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ द मर्क्यूरी। अब इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग बचपन में देखा होगा थर्मोमीटर, अब तो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं, पर पहले क्या यूज करता था, थर्मोमीटर यूज करते थे हम लोग। ठीक है, थर्मोमीटर में यूज होता है, इवन इन दी लैंप्स, लैंप्स में भी यूज होता है। ठीक है, डेंटल फील्ड में भी यूज किया जाता है मरकरी को। ठीक, जैसे मैंने बताया कि हैवी मेटल है, तो एक बार किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस गया तो ये क्या होगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा फैट में, और उससे क्या होगा, बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मिनामाटा कन्वेंशन। सो ठीक है, आज का सेशन में बस इतना ही था। ये तीन टॉपिक थे इम्पोर्टेंट, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो सून आई विल बी स्टार्टिंग पॉलिटी, और इस बीच में फिर आई गोइंग टू कवर ऑल द करंट अफेयर्स मंथली वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड टू प्लेलिस्ट इन माय यूट्यूब चैनल, वन फॉर द मेंस, वन फॉर द योर प्रीलिम्स। ठीक है, सो I'll going to cover three main topic every week related to your economy, polity and internal security, whatever is the in the news. ठीक है, उसको कवर करेंगे। जैसे इकोनॉमी में आई एम गोइंग टू कवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिस ईयर। ठीक है, या वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द नेशनल जियोथर्मल पॉलिसी। फर्स्ट टाइम इंडिया रिलीज नेशनल जियोथर्मल पॉलिसी, एंड दे हैव टॉक अबाउट द अरुणाचल प्रदेश इन दैट पॉलिसी। ठीक है, सो वी कैन कवर दैट ऑल्सो। ठीक है, and most of the articles which come in the newspaper basically they are related to economy or international relation. ठीक है, or the polity. So these are the only main topic you have to cover. ठीक है, so stay tuned with the channel. If you like the video, please subscribe, share with your friends. Everything is free on this platform, even the optional courses that will be coming soon. Thank you. Read well, revise well.